Hello student, this is exercise 6.3 and the question number 6 is here. As you said in the figure, two figures are given in the question and it is said that find out the similarity between the figures. Similarity is that both the figures are of the same height. The height is the 7 centimeter here and also in this figure. This is a cylindrical figure and this is a cubical. Difference is that the first one is the cylinder and the second one is cube. So this is a cylinder and this is a cube. Second part of the question is that which box has larger lateral surface area. So to get this, in the second part we will find out the lateral surface area of both figure. At first, cylinder formula is 2 pi RH. 2 into 22 by 7. R is diameter is 7, so radius is 7 by 2 and height is 7. 7 cancel. This is cancelled by 11 times. And now the calculation is 77 into 2, 154 centimeter square. The lateral surface area of cylinder. Now let us find out the lateral surface area of cube. Lateral surface area of cube formula is 4a square. It means 4 into 7 into 7. 28 into 7. 196. Question was which box has the larger lateral surface area. So cubical box has larger lateral surface. So this is question number 6. Let us move to the next question, the question number 7. The question number 7 is just see in the question number 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a metal sheet. How much sheet of the metal is required? Closed figure is closed. If the figure is closed, it means that we have to use the formula to find out the total surface area. So this is question number 7. Just see, closed cylindrical figure. So we have to find out the total surface area. Total surface area of cylinder. Formula is 2 pi r plus h. देखो फिगर में ये सिलेंडर क्लोज है, जैसे ये पेन है क्लोज होगा तो इसका ये पार्ट और नीचे का पूरा पार्ट क्लोज होगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर प्लस एच। अब इसमें जो जो चीज़ें हैं देख लें क्या है। 7 मीटर है रेडियस और हाइट है 3 मीटर, तो जस्ट पुट द वैल्यू 2 into 22 by 7 into 7, 7 plus height is 3. So now calculate 7 cancel, 44 into 10, 440 meter square. So this is the answer of the question number 7. And now the next question, try to understand the question at first. Question is, the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इट इज
cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो क्वेश्चन है कि पहले एक हमारे पास सिलेंडर है और उसका लैटरल सरफेस दिया हुआ है. सपोज कि ये सिलेंडर है. सिलेंडर का शेप ये होता है. ये इसकी रेडियस है और ये हाइट. दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज हाइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. अब इस सिलेंडर को इट कट अलोंग इट हाइट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शीट. अगर इसको बीच से काटा जाए तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है. कहने का मतलब एक रेक्टेंगल बन जाता है. और इस रेक्टेंगल में क्वेश्चन है, रेक्टेंगल बनाए नॉट्स बुक. तो इस रेक्टेंगल का इसका तो लैटरल सरफेस एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया वो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाँ, तो लेटरल सरफेस होता क्या है? लेटरल सरफेस में जो कर्व सरफेस भी इसको कह सकते हो. तो ये पार्ट क्लोज नहीं होता और ये पार्ट भी क्लोज नहीं होता. तो अगर हम इसको बीच से काट देते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा, एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगा. और इस रेक्टेंगल शेप में इसका जो पूरा एरिया है वो इसके इक्वल हो गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन lateral surface area equal to the rectangular part, rectangular sheet. तो रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के इक्वल होगा. जैसे देखो ये फिगर था, ये था हमारा सिलेंडर, इसको काटा गया. काटने के बाद जो शीट जो है इस तरह से हो जाता है. और तो एरिया दोनों तरफ से इक्वल होगा. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ और 4224. लेंथ है नहीं, ब्रीथ है 33, 4224. तो L इक्वल टू 4224 बाई 33. इसको क्रॉस करोगे आएगा 128. तो लेंथ आ गया 128 सेंटीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, आपको जैसे पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी. लेंथ 128, ब्रीथ 33. दोनों को अगर प्लस करेंगे 161. 322 सेंटीमीटर आंसर. तो ये है इसका पेरीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि एक रोड रोलर है. रोड रोलर आपने देखा होगा और वो जो रोड रोलर है उसके बारे में ये कहा गया है कि 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाता है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड. एक रोड को लेवल करने के लिए रोड रोलर घूमता है और रोड को लेवल करता है. तो एक रोड को लेवल करने के लिए वो 750 रिवोल्यूशन लगाता है, मतलब 750 बार घूमता है. ओके, तो फाइंड द एरिया ऑफ रोड. तो रोड का एरिया बताना. इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है रोलर का,
रोलर का डायमीटर, रोलर एक सिलेंडर शेप होता है, आपने देखा होगा, तो उसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और लेंथ है 1 मीटर। तो पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ रोलर equal to 84 centimeter, therefore radius equal to 84 by 2 42 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 42 by 100 मीटर। ओके, हाइट दिया है ऑलरेडी, हाइट इज गिवन, हाइट इक्वल टू 1 मीटर। तो वंस वी हैव गिवन द हाइट एंड द रेडियस, we have to find out the curved surface area or the lateral surface area of the roller। कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस रोलर का निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक बार वो घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, उतना ही दूर जाएगा जितना उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर, फॉर्मूला 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22 बाई 7 42 बाई 100 इंटू H1, क्रॉस करते हैं 7 6 जा। अब देखो इंटू करके क्या आता है, 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 264 अपॉन 100 मीटर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये 750 रेवोल्यूशन लगाता है, 750 बार घूमता है। तो 750 बार घूमता है तो वो पहुंचता है, पूरा करता है, पूरे रोड को लेवल करता है। तो हम 750 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही एरिया होगा रोड का। तो it takes 750 complete revolution to level the road, therefore area of road equal to 264 by 100 into 750। आप चाहते तो इसको क्रॉस कर सकते थे, पॉइंट में ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से लेते हैं, 5 2 बार में जाएगा और 5 15, 2 से 132, ओके 132 इंटू 15, तो 132 इंटू 15 इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। तो रोड का जो एरिया है वो होगा 1980 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर। एक कंपनी जो है वो पैक करती है मिल्क पाउडर को सिलिंड्रिकल कंटेनर में, whose base has a diameter 14 centimeter and height 20 centimeter. Company places a level around the surface of the container as shown in the figure. If the level is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of level? तो एक क्वेश्चन है ये। अब इसको आप देखो फिगर में जो कंटेनर बना है सिलेंड्रिकल शेप है, पहली बात इसका शेप क्या है, सिलेंडर, ओके। फिर इसके बाद जो लेबल लगा है जिस पे लिखा पाउडर्ड मिल्क का लेबल लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है। अब ये जो लेबल है ये किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर है। ऊपर से 2 सेंटीमीटर का जगह छोड़ना है, नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो ऊपर 2 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, नीचे से भी 2, कहाँ से माइनस होगा, हाइट में से। तो हाइट टोटल है 20 में से 2 ऊपर माइनस हो रहा है, 2 नीचे, तो हाइट कितना बचता है 16। रेडियस डायमीटर 14 है, रेडियस 7 हो जाएगा।
और इसके बाद हम लोग वही लैटरल सरफेस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका एरिया ऑफ लेवल। तो लेट अस डू। क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले इसमें हम नोट करें कि इसका डायमीटर क्या है। डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, therefore radius equal to 14/2, that is 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट। हाइट इक्वल टू हाइट 20 सेंटीमीटर। यस, हाइट है ये, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 20 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ लेवल 20 माइनस 2 प्लस 2, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ लेवल। 2 पाई आर इसके फॉर्मूले में जाएगा। 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7 और हाइट है 16। 44 इंटू 16, और अगर 44 से 16 को इंटू करोगे तो आएगा 704। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।